Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. Thanks for watching my videos and keep supporting me. This video is basically the solution of mark work. I took a mark work on coordinate geometry, probability and sets, and there are some questions which majority of the students have solved it, but there are still some confusions, so I decided to make a video on the solution of that mark work. This is basically the question number 1 and question number 3 of the mark work. In question number 1 we have to find the length of AB, the length of the line segment joined by two coordinates A and B, or we can say that the distance between 2 points A and B. This is basically my first point A, so I labeled it as x1 and y1. This is my second point B, which I labeled it as x2 and y2. x1 is 2, y1 is 3, x2 is 9 and y2 is 7, and I have to find the length of the line segment joined by 2 points AB. Or in other words, I can say that I have to find the distance between 2 points A and B. I know that the formula which we use for the distance is under root square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This formula will not be given to you. You have to memorize this formula by heart. And now you just have to put the values. x2 is 9, x1 is 2, so 9 minus 2 whole square plus y2 is 7 and y1 is 3, 7 minus 3 whole square. 9 minus 2 is 7 and the square of 7 is 49. 7 minus 3 is 4 and the square of 4 is 16. On adding 49 and 16 I will get under root 65, and on getting it converted into decimal I will get 8.06 units, which is basically the distance of the line segment AB, or which is the length of line segment AB, or the distance between 2 points A and B. In the second part, equation of a line is given to me, and I have been told that this line is passing through this point, which is minus 3 and 3, and I have to find the value of the k. Since this line is passing through this point will satisfy this equation, and in order to check that condition, I will just write this equation. I will put the value of x and y in this equation. अगर कोई पॉइंट सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, उसका मतलब है कि वो पॉइंट अगर मैं उस इक्वेशन में एक्स और वाई की जगह पे डालूं तो दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आएगा. ठीक है, ये सेटिस्फाई करने का मतलब होता है. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वी डोंट हैव आवर कांस्टेंट, वी हैव के. हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसका तरीका ये है कि अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें वो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन देता है और वो कहता है कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, तो आप क्या करोगे, उस पॉइंट को, चूँकि वो पॉइंट है तो उसमें एक्स और वाई की कोई ना कोई वैल्यू लाजमी होगी. आप उस एक्स और वाई की वैल्यू को इक्वेशन में डाल के अननोन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो. तो मैंने क्या किया, अपनी इक्वेशन लिख ली जो कि मेरे पास थी, y इक्वल टू 4x प्लस के. अब उसमें मुझे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि दिस line is passing through this point, so what will I do? I will just put the values of x and y in this equation. Since the first is the value of abscissa, which is x, and the second is the value of ordinate, which is y, so I have x is equals to minus 3 and I have y is equals to 3. तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूँगा, y की जगह पे मैं 3 पुट करता हूँ, एंड आई हैव 4, एंड ब्रैकेट में चूँकि x की वैल्यू नेगेटिव है तो मैंने ब्रैकेट में पुट कर दी, और फिर k की वैल्यू एज इट इज़. और मुझे पता है कि दिस इज़ 12 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 3 is equals to minus 12 plus k. और जब ये minus 12, since I have to find the value of k, so I will shift this minus 12 on the other side and it will become 12, positive 12 plus 3, and the value of k will be equals to 15. So this is the value of k. The value of k is 15. And the last question, which is basically question number 3. In question number 3 I have to find the gradient of a line. मैंने आपको बताया था gradient of a line find out करने के हमारे पास दो methods हैं. The first one is the 2 point formula and the second one is the linear equation. इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 पॉइंट्स तो नहीं दिए हुए, हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, और मुझे पता है कि अगर मैं इस लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट कर दूँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो मुझे डायरेक्टली जो है वो ये इक्वेशन ग्रेडियंट दे देगी. तो मुझे क्या करना है, इसमें मुझे सिर्फ इसको कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c होती है, या आप इसको mx प्लस b भी बोल सकते हो, जैसी आपकी मर्ज़ी है. आई जस्ट चेंज माई पेन. ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन है, मैं उस इक्वेशन को ज़रा एक बार लिख लूँ. 3y इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि मुझे पता है x की टर्म पहले होती है तो मैंने माइनस x पहले लिख दिया और फिर मैंने प्लस 2 बाद में लिख दिया. मैंने सिर्फ इसको अरेंज किया है और कुछ नहीं किया है. अच्छा, अब मुझे पता है कि y के साथ जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ y के साथ 3 है, तो मैं इस 3 को शिफ्ट करूँगा दूसरी साइड पे. जब ये 3 दूसरी साइड पे जाएगा तो ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा.
तो मैं इसको सिर्फ डायरेक्टली इस तरह लिख रहा हूँ कि मैं जो है वो x के नीचे भी 3 लिख देता हूँ और मैं जो है वो y के नीचे भी 2 के नीचे भी 3 लिख देता हूँ, क्योंकि 3 जो है वो दोनों से डिवाइड होगा। अब ये इक्वेशन जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है और मैं जब इसको कंपेयर करूँगा तो मुझे पता है कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो मेरा ग्रेडियंट है। तो x के साथ जो नंबर है, अब आप x नहीं लिखोगे, अब आपको ग्रेडियंट लिखनी है तो अब आप ग्रेडियंट में x नहीं लिखते, x के अलावा जो कोफिशिएंट है आप वो लिखते हो। तो आपके पास डिनोमिनेटर में 3 है और आपके साथ माइनस का साइन है, और जब ऊपर कोई नंबर नहीं होता तो आप 1 लिख देते हो। तो आपकी जो ग्रेडियंट है दैट इज इक्वल्स टू -1/3। आप x नहीं लिखते ग्रेडियंट में, क्योंकि x का कोफिशिएंट ग्रेडियंट देता है। तो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन भी मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में शेयर करूंगा। सो आई होप थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी, एंड डू वॉच माय वीडियोस। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करके इंशाल्लाह उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।